Hello students, a very welcome to all of you. So in today's lecture, we are going to learn about the log tables. Now this is very important part of mathematics which will be required in physics as well as in chemistry in 11th as well as in 12th standard. So let us understand this concept very properly. Now types of logarithms. Now there are two types of logarithm. First is called as common log. In common log, the base is always 10, and the second one is called as the natural log. In the natural log, base is always e. So whatever we are going to learn under the log table is always to the common log whose base is always 10. So these are the two types of logarithm. Now, if we want to find out log of any positive number to the base 10, then it is sum of the two things, that is characteristics and mantissa, where n should be a positive number. So log of n to the base 10 is equal to characteristics plus mantissa. Now there are two rules to find out the characteristics. Let us first see the two rules, then I will take down the example based on them. Do not worry. See, what does the rule number 1 say? If the number is greater than or equal to 1, then the characteristics is given by the formula n minus 1, where students n stands for the number of digits before the decimal. This is what rule number 1 says. What does rule number 2 says? If the number is less than 1, then the characteristics is given by the formula minus bracket n plus 1, which is nothing but equal to n plus 1 the whole bar, where n stands for number of zeros immediately after the decimal but before the non-zero digit. Please write down from here till the rule number 2. Then I will take down the examples that are dependent, how to find out the characteristics of a given number. Please make a note till here. Now let us take down some examples. Write down numbers. Then I will write down value of n, and over here I'll write down characteristics. Let's take down the first number. Now initially I will take all the numbers which are greater than 1. Few examples. Okay. So say for example 392.64. So students, first of all, we need to observe whether the number is greater than equal to 1 or less than 1. Now, since the first number that we have taken is obviously greater than 1, then the characteristics finding the formula is nothing but n minus 1. N stands for what, students? So n stands for number of digits before the decimal. Now you observe this number. Now, how many digits are there before the decimal? Decimal के पहले कितने digits है? So there are 3 digits. So students, n का value 3 हो गया. Now this n का value 3, I will substitute it over here in the formula. So when I put n का value 3 over here, so characteristics is nothing but 3 minus 1, that is nothing but 2. So 392.64 का characteristics is nothing but 2. Number of digits you have to see before the decimal. So there are 3 digits. So वो n का value 3 यहाँ पे substitute किया. That gives me the characteristics of the number. Okay, let's take down second example. Please try to understand very properly. Very important concept. 42.620. अच्छा, number greater than 1 है. Now you see the number of digits before the decimal. So before the decimal there are 2 digits. So students, n का value 2 हो गया. Now this n का value 2 I will substitute in the formula. So that will give me the characteristics. So 2 minus 1. So the characteristics of 42.620 is nothing but 1.
Next, third example, let us take 792. We observe students, यहाँ पे decimal है ही नहीं, it is only written 792, but obvious है कि 792.0 है, that's clear, obviously इतना मैथ तो हमें आता ही है. Now decimal के पहले कितने digits है? तो decimal के पहले there are 3 digits students, तो n का value 3 हो गया. Now this n का value 3, you substitute it over here. So 3 minus 1 is nothing but 2. So 792 का characteristics is nothing but 2. Okay, let us take one more example. 5.9282. इसका characteristics हमें find करना है. Now you observe decimal के पहले कितने digits हैं? There is only one digit before the decimal. So n का value is 1 and 1 minus 1 is nothing but equal to 0. n का value यहाँ पे put करना है आपको, है ना? So 1 minus 1 that will give me nothing but 0. So 5.9282 का characteristics is nothing but 0. Now ये वो numbers है जो 1 से बड़े हैं. Now let us see those numbers which are less than 1. 1 से छोटे होंगे वो वाले examples लेते हैं. I'm using a different color pen. Fifth one देखो आप 0.0212. Now we have to follow rule number 2 students. If the number is less than 1, then the characteristics is given by the formula minus bracket n plus 1, or you can say n plus 1 the whole bar. अच्छा, यहाँ पे n stands for what? N stands for number of zeros immediately after the decimal but before the non-zero digit. ठीक है, अभी देखो, since the number is less than 1, we have to count the number of zeros immediately after the decimal. So immediately decimal के बाद कितने जीरो है? एक ही जीरो है. तो स्टूडेंट्स n का वैल्यू 1 हो गया. Now this n का वैल्यू 1 I will substitute it over here. ये फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का. तो क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट 1 plus 1, that is nothing but minus 2, and minus 2 means it is nothing but bar 2, or you can read it as 2 bar. Please note down. So 0.0212 का characteristics is nothing but bar 2. क्या करना है? देखो वापस, अगर नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के इमीडिएटली बाद, immediately after the decimal but before the non-zero digit, you have to count the number of zeros and put up in this formula. That gives you the characteristics of that particular number. Okay, let us take next example. 0.00298. इसका characteristics find करना है हमें. Now you observe decimal के immediately बाद कितने zeros हैं? 2 zeros हैं. तो n का value 2 हो गया. Now this n का value 2 we will substitute in this formula students. So minus bracket 2 plus 1, that is nothing but minus 3. Minus 3 means it is nothing but bar 3. एकदम simple है. ये rules हमें follow करने हैं students. Seventh one more example. 0.9212. Now observe this number. 1 से छोटा है. Now count the number of zeros after the decimal. अभी डेसिमल के बाद एक भी जीरो नहीं है, तो एक भी जीरो नहीं है, तो n का वैल्यू 0 हो गया. अब ये n का वैल्यू 0 आप इस फॉर्मूला में पुट करो. तो व्हाट विल दिस बिकम? माइनस ब्रैकेट 0 plus 1, that is nothing but minus 1, which is nothing but bar 1. तो 0.9212 का कैरेक्टरिस्टिक is nothing but bar 1. Please note down. ध्यान रहे जब भी आप, और एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि when you are finding out the characteristics of this number, say for example अगर मैं आपको दे दूं 0.92120, अब ये 0 कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने में काउंट नहीं होगा. What does the rule says? N stands for number of zeros immediately after the decimal but before the non-zero digit. मतलब डेसिमल के बाद और नॉन जीरो डिजिट से पहले ही कितने जीरोस है वो काउंट करने हैं. तो दिस जीरो डजंट मैटर, यू नो. So you have to observe over here.
So that is what you put n का value in the formula that gives you the characteristic. Please make a note down. Now let us see what does this note says, students. Now the note says that the characteristics may be negative, or it may be positive, or maybe also zero. So देखो, characteristics of this number may be positive, may be zero, or may be negative also. तो characteristics positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, और characteristics zero भी हो सकता है. Please make a note. Okay, students. Now let us move on to find out log of a number. Now see, we have learned how to find out characteristics. Now we have to learn how to find out mantissa, but दोनों चीजों को हम एक साथ ले लेंगे. So let us learn how to find out log of a positive number. So it is sum of the two things, characteristics and mantissa. So write down. देखो, first example that we take, let us find out log of 23.12 to the base 10. ऐसा लिखो आप. Now first of all, what we are going to do, students, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक किसका, इस नंबर का. तो 23.12, ऑब्जर्व 23.12 इज ग्रेटर देन 1. तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का फॉर्मूला है n-1. अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताया कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना है. नाउ यू ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल. तो डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स है, तो n का वैल्यू 2 हो गया. n का वैल्यू 2 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 - 1 इज 1. So what is characteristics of this number? Characteristics of this number is 1. 23.12 का characteristics 1 हो गया. Now we have to find out mantissa, students. अभी mantissa find करने के लिए students, you will have to take log tables in your hand and in front of you. I'll explain. It's a very simple procedure. Now log tables में I will divide this into 3 parts. That is column A, column B and column C. ऐसे 3 parts में इसको divide कर दूंगा. Now if you observe in your log tables, column A starts from 10. 10 से start होता है and it goes till 99 on the next page. Column A में 10, 11, 12 ऐसा है. 10, 11, 12. It goes till 99. Now then you observe your column B. It goes from 0 to 9. चलो ये थोड़ा ABC में ऊपर लिख देता हूँ. ये A यहाँ पे हो गया, ये B यहाँ पे और ये C. Now under the column B you'll observe वो जो रो है उसमें लिखा है 0 to 9. Like over here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ऐसा ये रो जाता है 0 to 9 B में. Then C में you'll observe ऊपर लिखा है मीन डिफरेंस. Here it is written मीन डिफरेंस. ठीक है, यहाँ पे मीन डिफरेंस में द नंबर गोज फ्रॉम 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ऐसे ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, A, B and C. Now what is to be done when we are seeing the log tables? So first what you have to do, एकदम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. Forget about the decimal. अभी सबसे पहले आप 2 डिजिट्स लोकेट करो. The first 2 digits are 23. तो आपको क्या करना है, कॉलम A में you have to locate where is 23. कॉलम A में 23 को आपको लोकेट करना है. तो जरा प्लीज लोकेट कीजिए आपके लॉग टेबल में कॉलम A में 23. ओके, अभी 23 नेक्स्ट डिजिट इज 1. तो 23 अंडर 1, 23 अंडर 1, 23 में 1. यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा. 23 में 1 इज 3636. दैट नंबर इज 3636 ओवर हियर. देखो 23 अंडर 1 ये नंबर है. अच्छा, नाउ नेक्स्ट डिजिट ओवर हियर इज 2. तो क्या करना है, 23 वाला ही रो आगे कंटिन्यू करके मीन डिफरेंस 2. 23 वाला रो आगे कंटिन्यूड एंड मीन डिफरेंस 2. अब यहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 23
अंडर दैट मीन डिफरेंस 2, तो यहाँ पे जो नंबर है दैट इज नथिंग बट 4। ठीक है, तो इसका हमें टोटल करना है, तो 3636 प्लस 4 विल गिव मी हाउ मच, 3640। आई रिपीट, क्या करना है, फर्स्ट यू लोकेट द टू डिजिट्स 23, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 1, एकदम डेसिमल को छोड़ देना, आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, 23 अंडर 1 है ना। तो 23 पहले 23 डिजिट को लोकेट करना है, 23 अंडर 1 ये नंबर है 3636। वही 23 वाले रो को यू हैव टू कंटिन्यू अहेड और मीन डिफरेंस 2 देखना है। इवन दो इट इज मीन डिफरेंस, इट इज टू बी एडेड, डिफरेंस है मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, उसको ऐड करना है बाय द रूल। तो द टोटल इज 3640, बट जब हम मैंटिसा वाला पार्ट लिखेंगे इट इज टू बी रिटर्न एज 0.3640। आई टेल यू व्हाई, डोंट वरी। ऐसे डेसिमल में लिखना है। डेसिमल में क्यों लिखना है स्टूडेंट, प्लीज सी पॉइंट नंबर 2। मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट लाइज बिटवीन 0 and 1। मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज अ नंबर विच लाइज बिटवीन 0 and 1। ऑब्वियसली 0 and 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो भी नंबर आएगा उसके पहले डेसिमल डालना है आपको, तो वी हैव टू ऐड देम। तो इसका एडिशन क्या है, 1.3640 is the answer, students. So what is log of 23.12 to the base 10? उसका आंसर है 1.3640. I hope I am clear with this. Please make a note of this example. I hope students you must have written the first example. चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let us take log of 6.784 to the base 10. different type के examples ले रहा हूँ मैं. Okay. Now let us first find out characteristics of this number. Obviously students, you observe the number is greater than 1. So since the number is greater than 1, we have to follow rule number 1. So number of digits before the decimal. तो decimal के पहले एक ही digit है, तो n का value 1 हो गया. n का value 1 आप यहाँ पे substitute करो, तो 1 minus 1 0. तो इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज नथिंग बट 0. अभी हमें क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट मैंटिसा. अच्छा, मैंटिसा के लिए वी विल रिक्वायर लॉग टेबल स्टूडेंट्स. नाउ डेसिमल को फ्यू सेकंड्स के लिए आप भूल जाओ. पहले दो डिजिट कौन से हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, एकदम लेफ्ट हैंड साइड से पहले दो डिजिट्स देखने हैं आपको. तो फर्स्ट टू डिजिट्स आर 67. अब कॉलम ए में लोकेट 67 है ना, कॉलम ए में सेकंड पेज पे होगा, लोकेट 67. नाउ व्हाट यू डू, 67 के नीचे 68 होगा ना, तो पुट एक स्केल रख दो आप 68 पे, एक स्केल रख दो, सो दैट देयर इज नो मिस्टेक इन दैट, यू नो. अभी नेक्स्ट डिजिट क्या है, 67 देन 8. तो आपको क्या करना है, 67 में 8, 67 में 8, यहाँ पे एक नंबर मिलेगा. तो लेट अस चेक 67 में 8. तो 67 में 8 इज 8312. यहाँ पे एक नंबर है 8312. ओके, अभी आप नेक्स्ट डिजिट देखो 4. तो यही 67 वाला रो आगे कंटिन्यू करना है एंड मीन डिफरेंस 4. यहाँ पे भी आपको एक नंबर लोकेट होगा, मिलेगा, ठीक है ना. सो 67 में 4 यू हैव टू सी स्टूडेंट्स, मीन डिफरेंस में. तो 67 में 4 इज हाउ मच, इट इज नथिंग बट 3. 67 में मीन डिफरेंस में 4 इज नथिंग बट 3. यहाँ पे आपको नंबर 3 मिलेगा. तो व्हाट यू हैव टू डू, 8312 प्लस 3 करना है. सो द टोटल इज नथिंग बट 8315. बट एज यू नो कि जो मैंटिसा है इट इज नंबर बिटवीन 0 and 1 ना. तो 8315 को कैसे लिखेंगे, 0.8315. सो द आंसर इज नथिंग बट 0.8315. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये दोनों को हमें ऐड करना है, तो ये आंसर है. तो व्हाट इज लॉग ऑफ 6.784? इट इज नथिंग बट 0.8315. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो लेते हैं,
now let us take a number that is less than 1, जो 1 से छोटा है, ऐसा वाला नंबर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड एग्जांपल आप लिखो इसमें। log of 0.0714 to the base 10. Now you observe number 1 से छोटा है. Now since the number is less than 1, we are supposed to follow the second rule. Now you count the number of zeros after the decimal. तो decimal के immediately बाद कितने zeros हैं? 1. तो मतलब स्टूडेंट n का वैल्यू 1 हो गया और दिस वन, थर्ड एग्जांपल के लिए n का वैल्यू लिख रहा हूं मैं. तो n का वैल्यू 1 हो गया. दिस n का वैल्यू यू सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर और डायरेक्टली ओवर हियर. n का वैल्यू आप 1 पुट करो तो 1 + 1 2 बार. So the characteristics of this number is 2 bar or you can read it as bar 2. ये सेकेंड रूल हमने फॉलो करना है. नाउ इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स बार 2 आया. अब इस नंबर का हमें मैंटिसा फाइंड करना है स्टूडेंट. तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ऑब्वियसली जब हम मैंटिसा फाइंड करते हैं वी डोंट सी द डेसिमल. तो एकदम लेफ्ट हैंड साइड से पहले दो डिजिट्स कौन से हैं? 71. नाउ व्हाट यू डू, लोकेट 71. लॉक टेबल में सेकेंड पेज पे लोकेट 71. 72 पे आप स्केल रख दो. अभी नेक्स्ट डिजिट क्या है? 71 में 4. तो 71 अंडर 4, 71 अंडर 4, यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा. तो 71 में 4, दैट नंबर इज नथिंग बट 8537. अच्छा, अभी नेक्स्ट डिजिट है ही नहीं, तो यू हैव टू जस्ट सी 71 अंडर 4. अगर 4 डिजिट होंगे, जैसे यहाँ पे 67 में 8 में 4 देखा, अभी यहाँ पे मीन डिफरेंस के लिए कोई डिजिट ही नहीं है. तो यू जस्ट सी 71 अंडर 4, so it is nothing but 0.8537. so the total is bar 2.8537 हो गया. So log of 0.0714 is nothing but bar 2.8537. ये आंसर है. चलो फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस फाइंड आउट log of 0.08926 ऐसा फाइंड करते हैं. लेट अस टेक दिस एग्जांपल. नाउ यू ऑब्जर्व व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट log ऑफ दिस नंबर, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स है? देयर आर टोटल 5 डिजिट्स. नाउ वी डोंट वांट 5 डिजिट्स, तो इस नंबर को हम राउंड ऑफ कर देंगे. So this will be written as what? Log of 0.08927 to the base 10. देखो ये जो नंबर है, this is 6 greater than 5 है, तो you know how to round off. तो ये हो जाएगा 0.08927 हो जाएगा. Now first of all we are going to find out characteristics of this number. अच्छा, अभी मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ because I am running short of space. ठीक है. Now first I want to find out characteristics. So count the number of zeros after the decimal. तो n मतलब एक ही जीरो है, तो n का वैल्यू 1 हो गया. n का वैल्यू 1 आप यहाँ पे डालो, तो 1 + 1 2. तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज बार 2. अच्छा, अभी मैंटिसा फाइंड करना है. तो विच डिजिट आर वी गोइंग टू लोकेट स्टूडेंट? 89. आप देखो फर्स्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं? 89. तो 89 कहाँ पे आएगा? इसके पास में. अभी 89 में 2, 89 में we have to see 2. तो 89 अंडर 2, come on see the log table everyone. 89 अंडर 2 मतलब 89 में 2, यहाँ पे है 9504. ठीक है. अभी इसी 89 वाले रो को आगे कंटिन्यू करके मीन डिफरेंस 7. तो 89 में 7, 89 में 7, यहाँ पे एक नंबर मिलेगा हमें. तो लेट्स चेक व्हाट इज दैट. 89 में 7, so that is nothing but 3. इधर वो नंबर है 3. तो व्हाट विल हैपन? 9504 प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो द टोटल इज 9507 हो गया.
So how will we write down this? 0.9507. So this is nothing but students bar 2.9507 हो गया. That's it. तो log of 0.089266 जिसको हमने राउंड ऑफ करके लिखा, इसका log इज बार 2.9507. प्लीज नोट डाउन. So I hope you must have understood how to find out log of any given number, students. Chalo, let us take one more example. Now I'll write down below this table. इस टेबल के नीचे एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आप ट्राई करो फाइंड करने का. आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन. फोर्थ एग्जांपल हो गया, यहाँ पे लिखो फिफ्थ एग्जांपल. लॉग ऑफ 0.00089 टू द बेस 10. इसका लॉग हमें फाइंड करना है. कॉमन. अभी सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फर्स्ट यू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर. नंबर 1 से छोटा है तो वी आर गोइंग टू यूज रूल नंबर 2. काउंट द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल. तो डेसिमल के बाद कितने जीरो थे? 1 2 3. मतलब n का वैल्यू 3 हो गया है ना. मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए. n का वैल्यू 3 हो गया. अब ये n का वैल्यू 3 आप इस फॉर्मूला में डालो. तो 3 + 1 4 हो गया. 4 बार. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर? 4 बार. अभी प्लस. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू? नाउ वी हैव टू सी द लॉग टेबल स्टूडेंट्स. वही सेम नंबर मैंने रखा है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट स्टूडेंट्स? नाउ यहाँ पे 2 ही डिजिट्स है. 89. 89 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है. तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे लॉग फाइंड करेंगे? तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू? 89 के बाद ऑब्वियसली 0 आएगा. 89 के बाद 0 आएगा. तो 89 में 0 लोकेट करना है. तो 89 में 0, 89 अंडर 0, यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा स्टूडेंट. तो 89 में 0 इज 9494. तो इट इज 0.9494. देखो वो जो नंबर है 9494, इट इज ओवर हियर. बट लिखना कैसे है उसको? 0.9494 लिखोगे. तो व्हाट इज द टोटल आंसर? इट इज बार 4.9494. So log of 0.00089 is bar 4.9494. Please make a note of this. चलो last example लेते हैं. Now let us find out log of 576 to the base 10. Okay. चलो start doing. पहले आप करो. Then later on we will do it together. Now first you tell me what will be characteristics of this number. इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? अब देखो कौन सा रूल फॉलो होना है. रूल नंबर 1. नंबर 1 से बड़ा है. अच्छा अभी यहाँ पे डेसिमल है नहीं तो ऑब्वियसली वी कैन राइट डाउन 0.0 आफ्टर दिस. तो 3 डेसिमल के पहले 3 डिजिट्स है. तो n का वैल्यू 3. n का वैल्यू 3 आप यहाँ पे डालो. 3 - 1 2. तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर इज 2. नाउ व्हाट यू हैव टू सी? लॉग टेबल्स. अभी मेंटिसा वाला पार्ट लिखना है स्टूडेंट्स हमें. मेंटिसा इज अ नंबर बिटवीन 0 to 1. अभी क्या देखोगे? फर्स्ट 2 डिजिट्स 57 लोकेट करो आप, है ना. तो 57 कहाँ पे आएगा? अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 57 यहाँ पे. 57 में 6. 57 में 6. यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स. तो 57 में 6, दैट नंबर इज 7604. 7604 इज द नंबर. तो हम लिखेंगे 0.7604 लिखेंगे और वो 2 को ऐड हो जाएगा. तो व्हाट इज द आंसर? इट इज 2.7604. so log of 576 to the base 10 is 2.7604. note down.
प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी लॉग टेबल का प्रॉब्लम करेंगे, यू हैव टू ऑलवेज राइट डाउन टू द बेस 10, क्योंकि जो भी लॉग टेबल है इट इज ऑलवेज टू द कॉमन लॉग, जिसका बेस 10 है उसी के लिए सिर्फ हम लॉग टेबल यूज कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट ओनली टू दैट. तो बेस ई का वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. ओके, प्लीज मेक अ नोट. और फिर ये करने के बाद, नाउ वी हैव सीन हाउ टू फाइंड आउट लॉग ऑफ अ नंबर. अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट एंटी लॉग ऑफ अ गिवन नंबर. अभी एंटी लॉग लॉग का बराबर उल्टा प्रोसीजर, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस. जैसे लॉग में फाइंड किया वैसे ही उसका हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे. बट बिफोर दैट प्लीज मेक अ नोट डाउन ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, एंड ये रूल्स तो आपने लिख ही लिए होंगे. ओके, कम ऑन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था. ड्यू टू द कनेक्टिविटी इशू वी couldn't have continued the last lecture, but उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे. एंड लेट अस मूव ऑन टू द 7th एग्जाम्पल. लास्ट टाइम हमने देखा था कि फाइंडिंग आउट लॉग ऑफ अ पॉजिटिव नंबर. नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट एंटी लॉग ऑफ अ गिवन नंबर. तो लिखिए 7th एग्जाम्पल, एंटी लॉग ऑफ 2.7261. लिखिए आप ये नंबर, एंटी लॉग ऑफ 2.7261 फाइंड करना है. अच्छा, अब जैसे मैंने आपको लॉग टेबल सिखाया वैसे ही एंटी लॉग टेबल आप ओपन करो प्लीज, आपके सामने रखना. नाउ एंटी लॉग टेबल इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. नाउ एंटी लॉग टेबल में अगर आप देखोगे तो इट स्टार्ट्स विथ 0.00. जो कॉलम ए है वो 0.00 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल 0.99 ऑन द नेक्स्ट पेज. फिर जो कॉलम बी में एंट्रीज है दे गो फ्रॉम 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और जो कॉलम सी है, द कॉलम सी गोज फ्रॉम 1 to 9. दिस इज वी आर सीइंग एंटी लॉग टेबल. लास्ट टाइम हमने लॉग टेबल देखा था, अभी हम देख रहे हैं एंटी लॉग टेबल. नाउ व्हाट वी हैव टू सी, एंटी लॉग अगर आप देखोगे तो डेसिमल से स्टार्ट होता है. 0.00, 0.01, 0.02, ऐसे करते करते वो जाता है 0.99 तक. So whenever we are seeing anti-log table, we have to see after the decimal. Decimal के बाद देखना है. तो decimal के बाद देखने के लिए first what we have to see, the first 2 digits after the decimal, it is 0.72. तो आपको क्या करना है, लॉग टेबल में आप लोकेट करो 0.72, 0.72 लोकेट करो. ठीक है, तो इट विल बी ऑन द नेक्स्ट पेज 0.72. अभी नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0.72, आगे 6 है, तो 0.72 में 6 यू विल गेट ओवर हियर. एक नंबर मिलेगा आपको यहाँ पे, वो नंबर हमें देखना है क्या है. तो 0.72 में 6 इज 5321. इट इज 5321. अब जैसे हमने लॉग टेबल में कंटिन्यू किया वैसे एंटी लॉग टेबल में कंटिन्यू करना है. अभी 0.72 वाले रो को हमें आगे कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स. तो 0.72 में मीन डिफरेंस में 1 देखना है. ये सी जो है ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम है. तो 0.72 में 6 एंड 0.72 में 1, यहाँ पर एक नंबर मिलेगा 0.72 में 1. तो 0.72 में 1 इज 1 itself, यहाँ पे 1 है. तो क्या हो जाएगा टोटल 5321 प्लस 1. तो द टोटल इज नथिंग बट 5322. अभी ध्यान से देखो आप, फिर बाद में लिख लेना. तो नाउ व्हाट विल हैपन, 5322 ये 4 डिजिट्स हमें एज इट इज यहाँ पे लिखने हैं. अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, ध्यान दो. आफ्टर राइटिंग डाउन दिस नंबर 5322, आपको डेसिमल डालना है एक डिजिट के बाद. यू हैव टू पुट द डेसिमल इमीडिएटली आफ्टर 1 डिजिट इनटू 10 रेज टू. अब 10 के पावर में वो नंबर आएगा जो डेसिमल से पहले है. डेसिमल से पहले क्या है 2, तो दिस 2
will go to the power of 10. ये जो number 2 है वो 10 के power में जाएगा. Now you know that since 10 का power is positive, the decimal will shift to the right. 10 का power अगर negative होता है तो decimal left में shift होता है. 10 का power positive होता है तो decimal right में shift होता है. So when the decimal is shifted to the right hand side, this will become nothing but, I'll write down on the next line, this will become 532.2. So what is antilog of 2.7261? So it is nothing but 532.2. वापस एक बार ध्यान से देख लो क्या किया हमने. एंटीलॉग देखने के लिए डेसिमल के बाद देखना है. तो फर्स्ट 2 डिजिट्स वर 0.72. तो हमने कॉलम ए में 0.72 को लोकेट किया. फिर नेक्स्ट डिजिट था 6. तो 0.72 में 6 देखा हमने. तो 0.72 में 6 was 5321. फिर 0.72 में 1 देखा. मीन डिफरेंस में 0.72 में वी हैव सीन 1. तो ये दोनों का सम होगा. तो दैट इज नथिंग बट 5322. तो आई राइट डाउन 5322 डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट इनटू 10 के पावर में वो नंबर जाएगा जो डेसिमल से पहले है. ओके, प्लीज नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. लिख लीजिए आप. प्लीज अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप. हर एक स्टेप को समझ के लिखो आप. चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं. ये एग्जांपल 7 हो गया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू एग्जांपल 8. अभी फाइंड करते हैं एंटीलॉग ऑफ बार 2.2614. तो अभी हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली एंटीलॉग टेबल ही देखना है. आई विल रब दिस ऑफ. ये प्रीवियस कैलकुलेशन है, इसको मैं रब कर देता हूं. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू सी, डेसिमल के बाद. तो डेसिमल के बाद विच आर द फर्स्ट टू डिजिट्स? 0.26. तो कॉलम ए में 0.26 आप लोकेट करो. तो सी 0.26 विल बी ओवर हियर 0.26. ठीक है, फर्स्ट पेज पे एंटीलॉग के. तो 0.26. अच्छा 0.27 पे आप स्केल रख दो. नाउ नेक्स्ट डिजिट 0.26 में 1. 0.26 में 1. यहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा. तो 0.26 में 1 इज 1824. ठीक है, अभी 0.26 वाला रो आगे कंटिन्यू करके मीन डिफरेंस 4 तक जाना है. तो 0.26 में 4. 0.26 में 4, यहाँ पे एक नंबर मिलेगा हमें. तो 0.26 में 4, that mean difference is nothing but 2. So what will happen students? It will be 1824 plus 2. Even though it is mean difference, हमें ऐड करना होता है. ये 2 इसको ऐड हो जाएगा. So the total is nothing but 1826. अच्छा अभी हमें क्या करना है? 1826 as it is लिख दिया. चारों डिजिट as it is लिखे. Now you put decimal after 1 digit. वो रूल है. You put decimal after 1 digit into 10 raised to. 10 के पावर में कौन सा नंबर आएगा जो डेसिमल से पहले है? तो डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है? बार 2. बार 2 means it is nothing but -2. Now 2 decimals will be shifted to the left. So when we shift the 2 decimal to the left, 1 and 2, आंसर क्या हो जाएगा? 0.01826. This is nothing but एंटीलॉग ऑफ बार 2.2614. ये इसका एंटीलॉग है. 0.01826 इज द आंसर. तो अगर 10 का पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड पे. 10 का पावर नेगेटिव है तो डेसिमल शिफ्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड पे. दिस इज वेरी बेसिक ऑफ द मैथमेटिक्स. ओके, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल आल्सो. चलो, so let's move on to the next example. ठीक है, so now what I do is I just write down this answer and I'll rub this off so that I can have space. ये आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये है 0.01826. तो नेक्स्ट एग्जांपल हम यहीं पे करेंगे. बस एक आध दो एग्जांपल और, and then this is how we see the log and anti-log table.
नाइन्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइन्थ वन, एंटी-लॉग ऑफ 0.781, ऐसे 3 डिजिट ले लिए, एंटी-लॉग ऑफ 0.781। अच्छा, ये एंटी-लॉग को वो शॉर्ट फॉर्म में AL भी ऐसा लिख सकते हैं, एंटी-लॉग ये जो लिखा हुआ है, दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज AL, ऐसे भी लिखते हैं वो, एंटी-लॉग ऑफ 0.781। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, एंटी-लॉग देखना है, ऑब्वियसली वी हैव टू सी द एंटी-लॉग टेबल। तो प्लीज एंटी-लॉग टेबल आप आपके सामने रखिए, देखते हैं क्या होता है। नाउ व्हाट वी हैव टू लोकेट, डेसिमल के बाद देखना है, तो 0.78 आप लोकेट करो, तो 0.78, अभी नेक्स्ट डिजिट है 1, टोटल 3 ही डिजिट है डेसिमल के बाद हमारे पास, तो व्हाट वी हैव टू सी, 0.78 में 1 देखना है, तो 0.78 में 1, तो 0.78 में 1 इज 6039, 0.78 में 1 इज 6039, ये 4 डिजिट्स है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 6039 लिखा, नाउ यू पुट डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, 1 डिजिट के बाद डेसिमल डालने के बाद इनटू 10 रेज टू क्या आएगा, 10 रेज टू 0, जो डेसिमल के पहले है वो 10 के पावर में जाएगा। नाउ वी नो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो 10 रेज टू 0 1 हो गया, तो व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स, इट इज 6.039। दिस इज एंटी-लॉग ऑफ 0.781 का जो एंटी-लॉग है वो 6.039। so this is how we see anti-log table. Okay, please note down this example also. जो भी डेसिमल से पहले है वो आप याद रखो कि 10 के पावर में जाता है, that is how it works. Please note down. Okay students, तो और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं एंटी-लॉग के ऊपर, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू सी लॉग एंड एंटी-लॉग। इस लेक्चर में हमने ये देखा, लास्ट एग्जांपल फॉर टुडेज लेक्चर, अभी इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एंटी-लॉग ऑफ बार 1.62, ऐसा है, सिर्फ इतना ही ले लेते हैं, एंटी-लॉग ऑफ बार 1.62। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स है, 0.62, तो यू डोंट हैव टू वरी, व्हाट यू हैव टू डू, 0.62 को लोकेट करो आप, 0.62 को लोकेट किया। अच्छा, अभी 0.62 के बाद नेक्स्ट डिजिट तो है ही नहीं, बट ऑब्वियसली है ही नहीं का मतलब इट इज एक्चुअली 0.620 है, 0 तो हम लिख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करना है, एंटी-लॉग में 0.62 में 0, 0.62 में 0, यहाँ पे एक नंबर मिलेगा वो लोकेट करो आप एंटी-लॉग में, 0.62 में 0 इज 4169, 4169, ये 4 डिजिट्स लिख दिए। अच्छा, अब डेसिमल कहाँ पे डालना है, करेक्ट, वेरी गुड, डेसिमल डालना है आफ्टर 1 डिजिट, एक डिजिट के बाद डेसिमल डालना है, इनटू 10 के पावर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट, 10 के पावर में आएगा -1, जो भी डेसिमल से पहले है वो जाता है 10 के पावर में। अब 10 raised to -1 means 1 decimal will be shifted to the left, so this is nothing but 0.4169 is the answer and anti-log of bar 1.62. I hope everyone, you must have understood how to see the log table, anti-log table, how to add, subtract, multiply, divide with bar numbers. Next time when we meet in the next lecture, we will take problems that are dependent on numerical problems that are dependent on log tables. Laws of logarithm कैसे अप्लाई करने हैं और log tables का यूज एक्सटेंसिवली कैसे करना है, that we will learn in the next lecture. But by that time, please keep revising, keep studying, and keep watching my YouTube channel. Thank you very much. YouTube channel. Thank you very much.